हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो भाई कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड, ऑल आर हेल्दी, ऑल आर डूइंग वेल। सो सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी अपने बोर्ड्स वगैरह के एग्जाम्स के लिए, तो ठीक है भाई। तो यार देखो, जो आज की हमारी बोर्ड स्पेशल क्लासेस में हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला टॉपिक अभी चल रहा था, ठीक है, जिसमें हमने कल डिस्कस करा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ एग्जांपल देखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट जो कि हमने कल पढ़े थे। हमने स्लोप्स में रिलेशन वाले कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम आज कुछ एग्जांपल देखेंगे और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के हम कुछ केसेस भी आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास हम किससे शुरुआत करेंगे? क्लास शुरुआत करेंगे हम हमारी आज की पहली क्विज के साथ। तो भाई सब रेडी रहो, पहली क्विज आपकी स्क्रीन पर आने वाली है, ठीक है। एक क्विज में आपको जितने भी क्वेश्चन है उन सब में 4 ऑप्शन मिलेंगे और एक हमारा क्या होगा, देयर इज 30 सेकेंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो भाई लेट्स स्टार्ट द क्विज। सो रेडी हो सब? चलो भाई, so let's go for the quiz and there is the first question of the quiz which says that if m1 and m2 are slopes of two parallel lines, then m1 is equals to m2, m1 is greater than m2, m1 is less than m2 or none of these. A, B, C or D. Which one is the correct? A, B, C or D. What is the relation between two parallel line slopes? What is the relation between the slopes of two parallel lines? Those are equal. m1 is greater than m2, m1 is less than m2 or none of the above. Chalo bhai, time up. Let's go to the next question, and next question says that if the slope of a line is 0, then the line is perpendicular to the x-axis, perpendicular to the y-axis, parallel to the x-axis or parallel to the y-axis. जल्दी से बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? A, B, C और D. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट डिटरमाइन द x so that 2 is the slope of the line through 2,5 and x,3. So हमें फाइंड आउट क्या करना है? द वैल्यू ऑफ x where 2 is the slope. So जल्दी से फाइंड आउट करो which one is the value. A 1, B 2, C 3 और D 4. चलो भाई टाइम अप हो गया। एक एक करके तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं भाई किसने कौन सा आंसर सही लगाया और किसका आंसर कौन सा गलत है। सो भाई बताओ भाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2 इफ द लाइन आर पैरेलल? सो वी नो दैट इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. सो m1 is equals to m2, and if two lines are perpendicular then we know that m1 into m2 is -1. So here what are they saying? They are saying that two parallel lines having slopes m1 and m2, then what is the relation? So the relation is m1 is equals to m2. So option A is absolutely correct. Okay, so now we will discuss the second question. So what is the second question? The second question says that if the slope of a line is 0, then the line is, ठीक है. So we have discussed this question in last class. So हमने ये last class में discuss कर लिया था. क्या था कि हमारा अगर कोई line है, if there is a line having a slope 0, then that line is parallel to the x-axis. Then that line is parallel to the x-axis. For example, इसे अपना जिसे समझ में नहीं आया वो भी करके देख लेते हैं. If there is a line which is parallel to x-axis like this, like this, okay, so this point is 0 comma y and this point is x comma y. Okay, so now we have to find the slope of this line. So what is the slope? M is equals to y2 minus y1. Okay, so y2 is y
and y1 is also y, so y minus y upon x2 minus x1, so x minus 0, so which is equals to 0 upon x, and 0 upon x is equals to 0. So here we can say that the slope of line which is parallel to x axis is 0. So अपना हमसे यही कहा गया था यहाँ पर, if the slope of a line is 0 then the line is parallel to x axis. So the option C is the absolutely correct. Now go for the third question. The third question says that determine the x so that 2 is the slope of the line through 2, 5 and x, 3. Okay, so we have the formula slope m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, so हमें क्या दे रखा है, स्लोप गिवन है 2, so 2 must be equals to y2 minus y1 3 minus 5 upon x2 minus x1 x minus 2. ओके, सो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, वैल्यू अपनी निकल कर आएगी यहां से क्लियरली. सो द वैल्यू इज 2x minus 4 is equals to, यहां से अपनी वैल्यू क्या आएगी भाई, यहां से आएगा 3 minus 5 minus 2. So 2x is equals to minus 2 plus 4 which is equals to plus 2. So x is equals to 2 by 2 which means it is equals to 1. So the value of x is 1 if we have to make the slope 2. So which one is the correct? A option is absolutely correct. Okay. So here we end with our first quiz. So इसी के साथ अपनी जो फर्स्ट क्विज है वो यहीं खत्म हो जाती है. ठीक है, तो चलो भाई अब क्लास में आगे चलते हैं. और आगे यार स्टूडेंट्स आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है. ठीक है, क्या अनाउंसमेंट है? द अनाउंसमेंट इज दैट देयर इज अ क्लास 12 CBSE बोर्ड अ VIP course is started. So there are some different features which we have in VIP course which we don't have in normal courses. मतलब जो हमारे VIP कोर्स में कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि हमारे नॉर्मल कोर्सेज में नहीं है. ठीक है, वो क्या फीचर्स है वो मैं आपको बताता हूं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक, सो लाइव डाउट डिस्कशन, टॉप डाउट सॉल्व्ड इन लास्ट 15 ऑफ द क्लास. सो देखो भाई यहां पर क्या है कि जो हमारे लास्ट 15 मिनट्स ऑफ द क्लास होते हैं उसमें आपकी जो लाइव डाउट डिस्कशन होता है, यहां पर कैसे कि आप अपने लाइव जो अपने के डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डालते हो और उनका डिस्कशन हाथों हाथ वहीं पे क्लास में होता है, जो कि टॉप डाउट्स होते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल. ठीक है, यानी कि देखो भाई जैसे कि हमें पता है कि हमारी क्लास कितनी होती है, 40 to 50 मिनट के अराउंड की क्लास होती है. ठीक है, तो VIP कोर्स की क्लास में क्या होता है, अपनी 30 to 35 मिनट तो क्लास होती है और लास्ट में 10 to 15 मिनट हमारे क्या होते हैं, डाउट डिस्कशन का सेशन होता है. ठीक है, सेकेंड बेनिफिट इज लाइव इंटरेक्टिव क्लास टेकन बाय द टॉप टीचर्स. सो VIP कोर्स के जो हमारे टीचर्स हैं वो यहाँ पर टॉप टीचर्स आपकी लाइव क्लास लेते हैं जो कि काफी इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं. ठीक है, थर्ड थिंग स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड नोट्स प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपीरियंस टीचर्स. तो यहाँ पर आपको दो चीजें और मिलती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड कोर्स, तो आपको कोर्स के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा. दूसरी चीज आपको जो मिलता है ये है हमारा सबसे अच्छी चीज जो है वो क्या है, नोट्स प्रिपेयर्ड बाय एक्सपीरियंस टीचर. सो वी ऑल नो दैट हमें बुक वाली लैंग्वेज जो है वो ज्यादातर समझ में नहीं आती है. वी डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बुक समटाइम्स. सो हेयर नोट्स प्रिपेयर्ड बाय एक्सपीरियंस टीचर, तो उसमें जो लैंग्वेज होगी वो हमारे लिए काफी इजी होगी, समझने में आसान होगी, तो उन्हें पढ़ना काफी आसान होता है इन कंपैरिजन टू बुक्स. ओके, एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, यानी कि आपका एनसीईआरटी का डिस्कशन होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा. ठीक है, वीकली एंड मंथली टेस्ट, आपकी प्रिपरेशन चेक करने के लिए कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपके वीकली और मंथली टेस्ट होंगे. और डेली प्रिपरेशन करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होमवर्क में दी जाएंगी. एंड द लास्ट इज स्पेशल सेशंस ऑन जेई एंड नीट और रिवीजन एंड गाइडेंस. तो यहां पर आपके जेई और नीट के स्पेशल सेशंस होंगे और साथ ही साथ आपकी गाइडेंस के लिए और रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी. ठीक है, सो यार ये कुछ बेनिफिट्स हैं. अब देखो भाई इन बेनिफिट्स को आप चेक भी कर सकते हो कि ये सारे बेनिफिट आपको VIP कोर्स में मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे. कैसे? आप ले सकते हो VIP कोर्स का फ्री ट्रायल एक पर्टिकुलर टाइम के लिए. ठीक है, देयर इज अ ऑप्शन टू टेक अ फ्री ट्रायल ऑफ फॉर द पर्टिकुलर टाइम फॉर ऑफ VIP कोर्स. ठीक है,
सो कैसे लेना है इसका फ्री ट्रायल, ये भी बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप डाउटनेट का ऐप डाउनलोड करोगे। व्हेन यू ओपन इट, it appears a screen like this. Okay, so then you click on live class. When you click on live class, the second page will appear. You have to click on CBSE board live tuition paid courses. Okay, then the third page will come and you have to click on get free trial. So आपको किस पे क्लिक करना है? गेट फ्री ट्रायल पे। सो जैसे ही आप गेट फ्री ट्रायल पे क्लिक करोगे, आपका फ्री ट्रायल स्टार्ट होगा और आपका फोर्थ पेज आपके सामने अपीयर होगा, जहां पर आपका टाइम लिखा हुआ आएगा कि कितने टाइम के लिए आपके पास ये फ्री ट्रायल बचा हुआ है। ठीक है, तो यार देखो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यू कैन चेक दैट देयर इज सम नोट्स और व्हाट टाइप ऑफ क्लासेस इज गोइंग इन वीआईपी कोर्स। सो हमारी जितनी भी क्लासेस है वीआईपी कोर्स की, वो आप एक्सेस कर सकते हो, नोट्स एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आपके जितने भी स्पेशल सेशंस है वो भी एक्सेस कर सकते हो। किसके थ्रू? हमारे एक फ्री ट्रायल के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हो कि नॉर्मल क्लासेस में और वीआईपी क्लासेस में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो चलो भाई, आफ्टर दैट if you want to know anything about this course, you can contact on 0124715850। इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो चलो भाई आगे चलते हैं। एक काम करते हैं भाई, एक छोटा सा पोल कर लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा पोल आएगा, उस पोल में आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं? तो हाँ या ना में आप जवाब दो और जल्दी से बताओ भाई। पोल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। बताओ भाई जल्दी से बच्चों, हाँ या ना। चलो भाई, तो पोल हो गया अपना। अब आगे चलते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। सो देखो बच्चों, कल हमने डिस्कस करा था हमारा रिलेशन ऑफ बिटवीन टू लाइंस, टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में जो उनके स्लोप्स में रिलेशन होता है, वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हमने पढ़ ली थी, जनरल इक्वेशन भी हमने पढ़ ली थी, सारी चीजें हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, हम उस पर बेस्ड एग्जांपल करके देखेंगे और उस पर बेस्ड एग्जांपल के बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में, जो हमारे केसेस बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विद द एग्जांपल। ठीक है, और इस एग्जांपल में हमारे ऑप्शन भी गिवन है। ठीक, ऑप्शन क्या क्या है, पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन ए इज 4x² माइनस 3x माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड यानी कि बी ऑप्शन इज, व्हाट इज द बी ऑप्शन? 3x² माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर बराबर 0। 3x² माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इसके अलावा कौन सा है? सी ऑप्शन अपना क्या है? सी ऑप्शन है अपना 3x² माइनस 4xy minus y square is equals to 0, and the D option is 3x square is equals to y square. So the D option is 3x square is equals to y square. So the question says the joint equation of a pair of a line having slopes 1 and 3. So there is two lines having slope 1 and 3 and we have to find out the joint equation of these two lines. So, and the lines are passing through the origin. So, the line is passing through the origin and we have to find out the joint equation of the line which having slopes 1 and 2. Okay, so first of all, मुझे एक चीज बताओ, अपना लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होती है? स्लोप में लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होती है? स्लोप फॉर्म की अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx plus c. Okay, if it is passing through the origin, then c is equals to 0. So
इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 1 and passing through origin. Passing through origin. So देखो भाई, अपना ऐसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा जिसका स्लोप 1 है और ओरिजिन से वो पास हो रही है. सो हमें पता है कि लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, लेकिन ओरिजिन से पास हो रही है, सी की वैल्यू 0 होगी तो y इज इक्वल्स टू mx होगा, और m की वैल्यू क्या है, ये होगा y इज इक्वल्स टू m1x, और m की वैल्यू हमारी क्या है, m की वैल्यू अभी कुछ नहीं रखते हैं, ऐसे ही छोड़ते हैं. सो दिस इज L1. ठीक है, इसी टाइप से हमारा L2 निकाल लेते हैं. सो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m2x L2. ठीक है, इन दोनों को अगर मैं एक जनरल फॉर्म में लिखूं तो जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, y माइनस m1x एन y माइनस m2x. ठीक है, नाउ m1 और m2 क्या गिवन है, m1 है 1 और m2 है 3. सो m1 प्लस m2 is equals to 1 plus 3 is equals to 4 and m1 into m2 is equals to 1 into 3 is equals to 3. So now अब देखो हमारी दो इक्वेशन मेरे पास गिवन है, फर्स्ट और सेकंड. सो नाउ द जॉइंट इक्वेशन, नाउ जॉइंट इक्वेशन. Joint equation of L1 and L2. L1 और L2 की जॉइंट इक्वेशन क्या होगी, सो ये होगी L1 into L2 which means y minus m1x into y minus m2x. सिंपल सा है, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था. ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं. सो ये आएगा y स्क्वायर माइनस m2xy माइनस m1xy और प्लस m1 m2 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आएगा. ठीक है, यहां पर भी हमारा 0 है और इज इक्वल्स टू में यहां पर भी 0 है. सो देखो भाई क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, अभी ये आ गया इज इक्वल्स टू 0. ठीक है भाई, इतना आ गया मेरे पास. अब देखो y स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, xy कॉमन आ रहा है, क्लियरली xy कॉमन ले लो. सो व्हेन वी टेक कॉमन ऑफ xy, माइनस xy कॉमन ले लिया. सो अंदर अपने पास क्या बना, m1 प्लस m2 प्लस m1 इंटू m2 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन बन गई. अब m1 प्लस m2 की वैल्यू मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूं और m1 इंटू m2 की वैल्यू भी मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, तो क्या वैल्यू आएगी भाई, सो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस xy. m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होगी, m1 प्लस m2 की वैल्यू आई अपनी 4, सो ये हो जाएगा 4xy प्लस m1 इंटू n2 x स्क्वायर. सो m1 इंटू m2 आया हमारा 3, सो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. या फिर हमें क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. और यही अपनी क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन होगी. ठीक, सो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं. 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर. सो 3x स्क्वायर माइनस, सो पहला ऑप्शन तो गलत है बिल्कुल, 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. सो ऑप्शन बी जो है वो अपना एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है, तो देखो यार इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं जो कि मैंने आपसे डिस्कस करा. एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. सो हियर इज द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज दैट the equation of the line passing through the origin and having slopes 3 and 1/3 is.
सो यहां पर भी हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड हमारा स्लोप्स क्या क्या गिवन है 3 and 1/3। सो जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन हमें क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो सेम चीज है हमारी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था वैसे ही इस क्वेश्चन में करना है। लेट m1 is equals to 3 and m2 is equals to 1/3। so m1 plus m2 is equals to 3 plus 1/3 which is equals to 10/3 and m1 into n2 which is equals to 3 into 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गई वैल्यू 1। सो m1 प्लस m2 की वैल्यू आ गई 10/3, m1 into m2 की वैल्यू आ गई 1। ओके, सो नाउ अब अपने पास इक्वेशन क्या होंगी, इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं हमारी वही दो इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन L1 y इज इक्वल्स टू mx, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c तो होगा नहीं क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, सो y माइनस m1 x इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड क्या हो जाएगी y माइनस m2 x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों लाइन की मल्टीप्लीकेशन कर दो, L1 इंटू L2 करेंगे हम। ठीक है, ये हमारी L2 है, L1 इंटू L2 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा y माइनस m1x, ठीक है, इंटू y माइनस m2x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इतना ज्यादा चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सी एक चीज याद रखो, इसे मल्टीप्लाई करके अपने पास क्या आना है y स्क्वायर माइनस एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर m1 प्लस m2 इंटू प्लस m1 इंटू m2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसे मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, तो सीधा इस इक्वेशन को याद रखो, बाकी सब जाए छुट्टी करने। ठीक है, सीधा इस इक्वेशन को याद रखो। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू तो देखो भाई, वाई स्क्वायर रहेगा माइनस एक्स वाई, m1 प्लस m2 की वैल्यू है ये 10/3, तो ये हो जाएगा 10/3 एक्स वाई प्लस m1 इंटू m2 एक्स स्क्वायर, तो m1 इंटू m2 अपना क्या होगा, m1 इंटू m2 हो जाएगा अपना 1, सो 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर हो गया तो। ठीक है, तो अब यहां पर एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी निकलकर। सो देखो बच्चे, ये अपनी वैल्यू हो जाएगी 3 वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई प्लस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0। ये 0 इधर, ये 3 इधर 0 के मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा कंप्लीटली 0। सो यहां से अपने पास क्या आ गया 3 वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई प्लस 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं 3 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब अपनी ये आ गई, ये अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, ये क्या होगी, अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो आगे भाई समझ में आ गया कि कैसे हम जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे अगर मुझे दो डिफरेंट लाइन ऑफ इक्वेशन के, इक्वेशन ऑफ लाइन के क्या दे रखे हो, स्लोप्स गिवन हो। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, और वो गिवन होना चाहिए कि हमारी जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो भाई इस तरीके से अपना फाइंड आउट होगा। आ गई होगी ये चीज समझ में। ठीक, आगे सभी को समझ में। चलो भाई अब आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं हमारी पेयर ऑफ लाइन के कुछ आगे के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है बच्चों, तो यार देखो हमने कल इसकी जनरल इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है, जनरल इक्वेशन हमने पढ़ी थी। तो जनरल इक्वेशन क्या थी यार, जिसको याद है जल्दी से बताओ मुझे, क्या थी जनरल इक्वेशन हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जल्दी से बताओ। सो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस वाई बी स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy 2fy प्लस c
इज इक्वल्स टू 0। यही थी अपनी जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। सो देखो बच्चों, अब अगर मैं बात करूं कि हमारा यहां पर जनरल इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है। अगर मान लो हमें चाहिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। सो मैं उसकी जनरल फॉर्म लिख लेता हूं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the origin। सो क्या वैल्यू होगी भाई इसकी? इसकी हमारी इक्वेशन आती है, इसकी इक्वेशन क्या आती है भाई? इसकी इक्वेशन आती है हमारी ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन पर हमारे काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी एक एग्जांपल भी करेंगे जो कि हमारा इसी इक्वेशन पर बेस्ड होगा। इस इक्वेशन पर बेस्ड हमारे काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, तो इसलिए ये बतानी थोड़ी जरूरी थी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा इसी चीज की, यहीं पर आ जाते हैं। तो देखो भाई, अब इस इक्वेशन से हमारे काफी सारे केसेस बनते हैं, ठीक है। उन सारे डिफरेंट केसेस को आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं वो सारे केसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इफ, देखो भाई, उस इक्वेशन से आप h² निकाल सकते हो, जनरल इक्वेशन से आप h² फाइंड आउट कर सकते हो, a फाइंड आउट कर सकते हो, b फाइंड आउट कर सकते हो, c फाइंड आउट कर सकते हो कंपेयर करके, ठीक है। सो उसी से ही हमारे केसेस बनते हैं। सबसे पहला इफ h² माइनस ab, h² is equals to ab, then what it represent? It represent pair of parallel lines, ठीक है। सेकेंड, h² is less than ab, then what it represent? So it represent imaginary line, मतलब कि आप इन लाइन को केवल इमेज कर सकते हो, बना नहीं सकते हो, ठीक है। अगर h² की वैल्यू लेस देन आ जाती है ab से, इफ h² इज ग्रेटर देन ab, सो व्हाट इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ टू डिफरेंट लाइन्स, पेयर ऑफ डिफरेंट लाइन्स, या फिर हम कह सकते हैं डिस्टिंक्ट लाइन्स। मतलब कि डिस्टिंक्ट लाइन कैसे? एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, दोनों बिल्कुल अलग अलग लाइन होंगी, डिस्टिंक्ट लाइन होंगी, ठीक है। थर्ड वन क्या है भाई? थर्ड वन है इफ a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है, ठीक है। सो व्हाट इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ विच लाइन्स? पेयर ऑफ, जल्दी से बताओ भाई, किस किस को ध्यान है ये चीज? किस किस को ध्यान है? अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 0 होगा तो कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगा? सो ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इफ क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? ये अपना रिप्रेजेंट करता है इफ h² is greater than equals to ab, then what it represent? तो जल्दी से बताओ भाई, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? Then it represent pair of real lines. Then it represent pair of real lines. Pair of real lines. Real lines. ठीक है, ये हमारे पास 5 केसेस हैं। इन 5 केसेस में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। एक तो ये वाला जिस पर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। ये 3 केसेस ऐसे हैं जिन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 3 केसेस ऐसे हैं जिन पर हमारे मेनली और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो भाई अब आगे चलते हैं और आगे चल के बात करते हैं एक एग्जांपल की, जो कि इसी चीज पर बेस्ड है। और किस पर बेस्ड है हमारा? और बेस्ड है हमारा इस चीज पर, जो कि हमने पेयर ऑफ पासिंग स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ठीक, तो चलो भाई बात करते हैं। सो द इक्वेशन 4x square minus 24xy plus 11y square is equals to 0 represents. So what it represents? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। वैसे तो ये देखते ही हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, और अभी मैंने हिंट भी दे दिया कि किस पर बेस्ड है। तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है, ये मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं इस क्वेश्चन के। सो ऑप्शन अपने क्या क्या है? 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, बी ऑप्शन है 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, सी ऑप्शन है 2 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। और द D1 इज none of the above, none of the above। सो हमारी ये जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? 2 पैरेलल लाइंस को, 2 परपेंडिकुलर लाइंस, 2 लाइंस पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो यार इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? इसके लिए मुझे यहां से h की वैल्यू मिलनी चाहिए और a की वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो देखो भाई इक्वेशन क्या है, पहले अपनी इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये अपनी 4x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 11y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो देखो भाई इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कौन सी लाइन से ये हमारी कंपेयर हो रही है? कौन सी इक्वेशन से ये कंपेयर हो रही है हमारी? सो देखो क्लियरली ये वाली जो इक्वेशन बन रही है, ये बन रही है ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहां से देखो भाई एक ऑप्शन तो मुझे क्लियरली पता लग गया कि भैया ये वाला ऑप्शन तो मेरा सही जा रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो ये इक्वेशन किसे हमारे रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी इस वाली इक्वेशन को, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन वाले को, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये मेरा सही जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहां से h की वैल्यू निकालूं, a की वैल्यू निकालूं और गलती से हमारी वो उन दोनों केसेस में से किसी एक केस में बैठ गई, तो या तो हो सकता है वो पैरेलल भी हो। अगर हमारा क्या आ गया h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी आ गया तो हो सकता है वो पैरेलल हो, और h स्क्वायर अगर हमारा क्या a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया तो हो सकता है वो हमारा परपेंडिकुलर भी हो। तो एक बार चेक करने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स चेक इट, लेट्स गिव इट अ शॉट। तो भाई देखो अब ना वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार। h की वैल्यू क्या होगी? a इज इक्वल्स टू 4 हो गया, h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना? h इज इक्वल्स टू 2h हो जाएगा। चलो 2h ले लेते हैं। 2h इज इक्वल्स टू हो गया -24, सो h इज इक्वल्स टू हो गया -12, ठीक है। और b इज इक्वल्स टू हो गया 11। सो h स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो h स्क्वायर हो गया अपना -12 स्क्वायर 144, ठीक है। और ab की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ab इज इक्वल्स टू 44, ठीक है। और a प्लस बी भी निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी अपना क्या आ रहा है? a प्लस बी आ रहा है 4 प्लस 11 यानी कि 15, जो कि नॉट इक्वल्स टू है 0 के, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन तो नहीं है, यहां से ये पता लग गया मुझे कि परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, ठीक है। और अब देखो एच स्क्वायर अपॉन ए बी वाली कंडीशन क्या बन रही है? एच स्क्वायर अपॉन ए बी वाली कंडीशन क्या बन रही है? ये बन रहा है 40, 144 इज ग्रेटर देन 44, विच मीन्स
एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। तो ये वाली कंडीशन हमारी किसके लिए है? ये वाली कंडीशन है हमारी टू डिस्टिंक्ट लाइन के लिए, विच मीन्स देयर आर टू डिस्टिंक्ट लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। सो विच वन इज द करेक्ट? सो द ऑप्शन सी, two line passing through the origin is the correct. That this equation is representing two line passing through the origin. This option is the absolutely correct. Okay, so चलो भाई, अब देखो भाई, तो बच्चे देखो, आज की क्लास जो है अपनी, आज की क्लास में केवल इतना ही था। हमने केसेस देख लिए, हमने बेस जो एग्जांपल थे वो भी देख लिए। अब चलते हैं सीधा हमारी आज की दूसरी क्विज पर, और दूसरी क्विज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर देखते हैं क्या कह रहा है भाई। दूसरी क्विज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है अपना द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी भाई? x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 या फिर नन ऑफ द अबव। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, जल्दी से बताओ बच्चों, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द लाइन इज। सो व्हाट इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन? y minus y0 is equals to m into x minus x0, x minus x0 is equals to m into y minus y0, y plus y0 is equals to m into x plus x0 या फिर none of the above. Which one is the correct? A, B, C और D? चलो बच्चों, टाइम अप हो गया। अब एक एक करके अपने दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी यही इक्वेशन है। सो y एक्सिस की हमारी इक्वेशन क्या होती है? ये हमारी y एक्सिस है। सो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन हमारी क्या होगी? y इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल भी नहीं होगी भाई। y इज इक्वल्स टू 0 पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 ही क्या है, इसकी इक्वेशन हो सकती है हमारा। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि y एक्सिस पर x अपना क्या होता है? x इज इक्वल्स टू 0 होता है। x इज इक्वल्स टू 1 होगी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द लाइन। सो व्हाट इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन? सो इफ वी हैव अ पॉइंट, slope is m and the point is x0 and y0. So the point slope form is y minus y0 is equals to m into x minus x0. So this is the point slope form of a line. So the option A is absolutely correct. So बच्चों देखो, आज की क्लास में केवल अपना इतना ही था। ठीक है, हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के जो केसेस है उन्हें देख लिया, उन पर बेस्ड एग्जांपल की आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, साथ ही साथ हमारे जो मैंने आज 2 एग्जांपल कराए थे उनके जैसे एग्जांपल की भी आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्योंकि यार जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो चलो भाई, अब मिलते हैं सीधा अगली क्लास में इसी टाइम पर। ठीक है, यानी कि 4 से 5 बजे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।